کی مثال آج بھی قائم ہے. یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ سیاسی لیڈران نے نفرتوں کی دیواریں اس قدر اونچی کر دی کہ اب لوگ تعصب کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مگر آج بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اگر کسی کے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ صاحب یہ گھر مسلمان کا ہے کہ ہندو کا ہے. جو تمہارا پڑوسی ہے وہ دوڑ کے تمہاری مدد کرے گا. اور اس کی زندہ مثال آج کے 3 دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا. اپنی آئی ڈی سے میں نے ڈالا بھی کہ فاضل نگر میں ایک گپتا سماج کے گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگی, بچے اندر تھے اور عارف نام کے ایک بچے نے گھر میں گھس کر کے, جو آج بھی زیر علاج ہے, زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے, گھر میں گھس گیا. اور گھسنے کے بعد اس نے دونوں بچیوں کو, 3 بچیوں کو واپس لے کر کے باہر آ گیا. مگر خود اتنا جھڑک گیا کہ ابھی وہ خوشی نگر کے اسپتال میں آج بھی زیر علاج ہے, زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ہمارے یہاں اتنی نفرتوں کے بعد بھی آج بھی محبت سلامت ہے. آج بھی گاؤں کی مسجدوں میں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا کہ مسجدوں کے دروازوں پر آج بھی ہندو سماج, مسلم سماج کی بیٹیاں سر پہ آنچل ڈال کر, حجاب ڈال کر آج بھی کھڑی ہوتی ہیں. اور آج بھی ان کا یہ وشواس ہے کہ 3 رکعت نماز پڑھ کے اگر یہ نمازی, اگر یہ مسلمان میرے بیٹے کو دعا کر دے گا تو میرے بیٹے کی نظر دور ہو جائے گی, میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا. آج بھی کیونکہ ہندو کہیں کے ہیں نہ مسلم کہیں کے ہیں, دونوں یہی رہیں گے, دونوں یہی کے ہیں. ملک تو سب کا ہے. اسی ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے 40,000 سے زائد علماء کرام نے پھانسی کے پھندے کو مسکراتے ہوئے اس لیے چوما تھا تاکہ اس ملک میں مذہب کے نام پر, ذات برادری کے نام پر کوئی بھید بھاؤ نہ ہو. اور یہ ذمہ داری ہم جیسے لوگوں کی ہے, انصاف پسند ہندو اور مسلمان کی ہے کہ آج بھی اس ایکتا اور اکھنڈتا کو سلامت رکھنے کے لیے ہمیں بڑھ کر کے آگے آنا ہوگا. اور یقین کیجئے کہ جس کے لیے بیٹھ کے ہوٹلوں پر, گھروں میں اور چوراہوں پر, نکڑ اور گلیوں میں بیٹھ کر کے جو دعائیں کی جاتی تھی, اے ایشور, اے اللہ, ایک ایسا قائم ہمیں بھیج دے, ہمیں دے دے, عطا کر دے کہ جو سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ ایسا ہو جو دولت والا ہو, جو شہرت والا بھی ہو, نام بھی کمایا ہو, جس نے کبھی ہندو مسلمانوں میں تفریق نہ کی ہو. اور وہ دعا قبول ہوئی. اور 10 فروری 2008 کو ڈاکٹر محمد ایوب سرجن نے پیس پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی اور بنا کر کے میدان عمل میں نکلے. اور آپ نے دیکھا کہ جس رفتار سے پہلے دن وہ بندہ چلا تھا, آج اس سے 10 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ آج بھی چناؤ ہارا ہے یا چناؤ جیتا ہے, ہر قیمت پر وہ میدان میں ہے, اس یقین کے ساتھ کہ تجھے گما ہے کہ زمانہ ہی مرتبہ دے گا. مجھے یقین ہے عزت فقط خدا دے گا. جس دن میرے رب نے چاہا, سنگھرش کی بنیاد پر, محنت کی بنیاد پر اور جد و جہد کی بنیاد پر انشاءاللہ اس دن ہمیں بھی کامیابی حاصل ہوگی. لگاتار زمین پر ہم ورک کر رہے ہیں. یہ چناوی سوال نہیں ہے, مگر سوچئے کہ آپ پر ہونے والے ظلم و تشدد کو روکنے کے لیے ہندو سے مسلمان, گیتا سے قرآن, مسجد کو مندر سے لڑانے والوں کو ان کے منصوبے کو نہ فیل کرنے کے لیے, ان کے عزائم کو ملغمت کرنے کے لیے, اگر آپ نے اپنی اس جماعت کو, اپنی اس تحریک کو اگر آپ نے طاقت نہیں دی, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج تک یہاں کے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے آپریشن کرانے کے لیے بہرگنج, بستی یا جو بھی نزدیک رہا ہو,
ईमानदारी से बताइए, कभी डॉक्टर अयूब सर्जन ने आपसे आपका मजहब पूछा हो? कभी डॉक्टर अयूब ने ऑपरेशन थिएटर में कभी आपसे ये पूछा हो ये पेट हिंदू का है या मुसलमान का है? बताओ तुम्हारा नाम राजकुमार है या अरबाब है? बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है? कभी नहीं पूछा। अगर जुमे के दिन कंसेशन किया है मुसलमानों का तो उसी ताकत के साथ और उसी एतमाद और ईमान के साथ वही काम हिंदू भाइयों के साथ भी किया है। कभी उसने भेदभाव नहीं किया मजहब के नाम पर। आप कहते थे ईमानदार नेता चाहिए, क्या जैसे हमारे यहां मुझे इस बात का अक्सर अफसोस रहता है और भारत के तमाम स्टेटों में जाकर के मैं अपने उलमा के लिए ये कहता हूं अक्सर, हमारे यहाँ जो आलिम दीन हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मदरसा पढ़ा रहे हैं, उनके लिए उनकी सारी फजीलत तब बयान होती है जब वो जनाजे की चारपाई पर लेट जाए, तब तकरीर होती है मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। ईमानदारी से बताइए, अगर एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है तो क्या एक आलिम की जिंदगी एक आलम की जिंदगी नहीं होगी? मौत ही में आलिम की सारी फजीलत, मरने के बाद ही उसकी सारी फजीलत उजागर होगी, जिंदगी में क्यों नहीं? ठीक इसी तरह से आप ये तो कहते हो कि हमें कोई कायम चाहिए, हमें कोई अच्छा नेता चाहिए, अच्छा रहबर, अच्छा लीडर चाहिए, लेकिन इंतकाल होने के बाद तब हमें समझ में आता है यार आदमी बहुत ईमानदार था, मगर उसकी जिंदगी में क्या हम उसका साथ नहीं दे सकते? भारत की कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जिस पर आपने यकीन नहीं किया, जिसको आपने वोट नहीं दिया, जिसको आपने सपोर्ट नहीं किया और जिस पर आपने हाथ रखा? 42 साल तक कांग्रेस का दौर इख्तियार जरा निगाहों के सामने रखे। कौन से ऐसे मजालिम के पहाड़ थे जो नहीं तोड़े गए? कौन सी आपकी दास्तान है जो खून से लगी हुई न हो? आपने हाथ रखा बहन कुमारी मायावती जी पर, 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आपने हाथ रखा माननीय मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव पर, 4 बार समाजवादी की सरकार बनाई। किसकी सरकार आपने नहीं देखी? मगर क्या आपके हालात बदले? चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। क्या इस सिस्टम को बदलने के लिए किसी एक ईमानदार आदमी की जरूरत नहीं है? आप दुआएं मांग रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही थी, कोई एक आदमी ऐसा दे दे जो ईमानदार हो। ईमानदारी से बताइएगा, आपके गली और मोहल्ले में, अगर आपके पास पड़ोस में अगर किसी ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले का बेटा अगर इंटर पास कर ले, हाई स्कूल पास कर ले, तो लखपति और करोड़पति शाम को दस्तरखान पे अपने बेटे को बैठ के समझाते हैं कि बेटा शर्म आनी चाहिए, देखो ठेले चलाने वाले का बेटा हाई स्कूल पास कर लिया और बेटा तुम पास नहीं कर सके, इंटर पास कर लिया तुम पास नहीं कर सके। मिसाल देते हैं लोग। और सोचिए अगर आपके इस पड़ोस में और मोहल्ले में अगर किसी बच्चे को सफाई कर्मी की सरकारी नौकरी भी मिल गई है, तो मुझे बताइए क्या कोई सफाई कर्मी की नौकरी छोड़ना चाहता है? अगर नाली नाले को साफ करने की जॉब नौकरी मिल गई उसे, तो उसे कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मगर आज के तकरीबन 30 साल के पहले इसी पढ़ालगंज में एक गरीब बुनकर समाज मरहूम आशिक अली अंसारी के घर में पैदा होने वाला बेटा डॉक्टर अयूब बनता है, MBBS करता है, MS करता है, मास्टर ऑफ सर्जन होता है और भारत की सबसे बड़ी सम्मानजनक कही जाने वाली कुर्सी IAS कंपटीशन बीट करता है और छोटी मोटी नौकरी नहीं महाराष्ट्र में कस्टम कमिश्नर हो जाता है। आपका बेटा सफाई कर्मी की नौकरी नहीं छोड़ता। और डॉक्टर अयूब ने आज के 30 साल पहले अपने बाप मरहूम आशिक अली को खत लिखा था, अब्बा हुजूर मुझे एक बात बताइए कि आज जिस जगह मैं हूँ करोड़ों रुपए एक दिन में कमाया जा सकता है, क्या आपकी इजाजत है मैं पैसा कमा लूं? तो यहां से खत के जरिए से उन्होंने कहा था, मेरे बेटे अयूब, अल्लाह ने तुझे
अयूब से डॉक्टर अयूब बना दिया है। मेरे मजहब में मेरे मुस्तफा का कानून है कि रिश्वत लेना भी हराम है और रिश्वत देना भी हराम है। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जिसमें मेरे मजहब का कानून, मेरे मुस्तफा का कानून पामाल होता हो। ईमानदारी से बताइए, यही मैं आपसे कह रहा था कि आपका बेटा, आपके पड़ोस में रहने वाले लोग सफाई कर्मी की नौकरी नहीं छोड़ते और डॉक्टर अयूब ने कस्टम कमिश्नर की नौकरी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि इस्लाम में रिश्वत का लेना भी हराम है, रिश्वत का देना भी हराम है। फिर उस शख्स ने अपने आप को तरक्की के राह पर गामजन किया, ऑपरेशन की दुनिया में कदम रखा, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने अपना नाम दर्ज कराया। यानी इज्जत, अजमत, दौलत, शोहरत जो भी हो सकता था उसने साबित किया, मगर सियासत में कदम नहीं रखा। तो जहां भी, जिस गांव में भी पहुंच जाओ, सोचिएगा हमारा और आपका सियासी शुरू कहां है। अपने को अपना ना समझा हमने, अपने की फौकियत और फजीलत तो मरने के बाद भी हमें समझ में आती है। मगर याद रखिएगा कि डॉक्टर अयूब जब तक गिनीज बुक में नाम दर्ज करा रहा था, ईमानदार था, दौलत कमा रहा था, ईमानदार था, ऑपरेशन कर रहा था, ईमानदार था, अपने बच्चों को आला तालीम दिला रहा था, ईमानदार था। मगर डॉक्टर अयूब सर्जन से पत्रकारों ने सवाल किया था, सहाबी ब्रादरान ने सवाल किया था कि डॉक्टर अयूब साहब, आप एसी कमरे, एसी गाड़ी और प्लेन में सफर करने वाले लोग, उम्दा जिंदगी गुजारने वाले लोग, 4 करोड़ से ज्यादा पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स देने वाले लोग, बड़ा बेटा डिप्टी डायरेक्टर सहारा हॉस्पिटल में, दूसरा बेटा अमेरिका में इंजीनियर, तीसरा बेटा अकाउंटेंट, चौथा बेटा कंपनियों को संभाल रहा है। डॉक्टर अयूब साहब, आपको मैदान सियासत में आके गली गली गाली खाने की जरूरत क्या थी? वो जो 150 रुपए पे अपने वोट का सौदा कर देता है, वो जो 1500 रुपए पर अपने पूरे घर का वोट बेच देता है और मस्जिद में जाके दुआ करता है, अल्लाह उमर जैसा आदिल पैदा कर दे। ईमानदारी से बताइएगा, जब इंतखाब की बारी आई तो चुना है कातिलों को, चुना है जालिमों को, चुना है आपने ऐसे लोगों को जिन्होंने मजहब की खलीज को इतना वसी कर दिया कि आज भाई भाई के खून का प्यासा नजर आता है। मगर ईमानदारी से मुझे बताइएगा, डॉक्टर अयूब सर्जन से जब सवाल किया कि अपने बेटों को आला तालीम दिलाने के बाद आप मैदान सियासत में क्यों आए, तो डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा था कि मैंने अपने बच्चों को तालीम दिला दी, अपने पड़ोस में बच्चों को तालीम दिला सकता हूँ, अपने नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में तालीम दिला सकता हूँ। मगर अगर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के यतीमों, नादारों, मुफलिसों, दलितों, पिछड़ों के बच्चों को अगर मैं इंसाफ देना चाहता हूँ, अगर उनके लिए अच्छी तालीम का इंतजाम करना चाहता हूँ, अगर अमीर का बेटा अगर उसके सीने पे वर्दियां रहे तो गरीब के बेटों के सीनों पे भी वर्दियां रहे, अगर घूस घास के नाम पर अगर 2 नंबर के लोगों को नौकरियों में जगह न मिले, अगर गरीबों के बच्चों को भी हुकूक चाहते हैं, तो मेरे पास हॉस्पिटल है, छोटा सा कॉलेज है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन उससे ये चीजें मुमकिन नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के दलितों, पिछड़े, मुसलमानों और जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनके दरवाजे पर इंसाफ पहुंचाने के लिए लाजिम है कि हमें इक़्तिदार में हिस्सेदारी हासिल करनी पड़ेगी, सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम हर दरवाजे तक इंसाफ पहुंचाने का काम करेंगे। और यार, न सिर्फ मुसलमान के लिए, सब समाज के लिए, क्योंकि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारे पैगंबर का कानून है कि तुम खाना खा रहे हो पेट भर के, और तेरा पड़ोसी खाह किसी भी मजहब का हो, धर्म का हो, अगर तेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि वो लुकमा तेरे लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है। याद रखिएगा, इसी आपके अली नगर के रोड पर, अगर आपके शाहराहों पर या हाईवे पर अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और अगर आपने ये देख करके कि साहब हमारे पहचान का आदमी नहीं है, जाने दो, मर जाने दो, यकीन मानिए
अगर आपने उसके हाथ में बंधे हुए धागे या हाथ में पहने हुए कंगन से देखने के बाद अगर आपको ये महसूस हो गया कि साहब नाना मुसलमान तो नहीं है, तो इतने मुसलमानों के बीच में अल्लाह फारूक ऐलान करता है, अगर किसी की जान बचा सकते हो और तुम आगे बढ़ गए तो याद रखना तुम सब हो सकते हो, मुसलमान कहलाने का हक तुम्हें नहीं है। इसलिए कि जान बचाना तो लाजिम है यार, कोई भी हो, किसी भी मजहब किसी भी धर्म का हो, मगर उसकी जान तुम्हें बचानी है। किसी बेटी की आबरू लुट रही हो, किसी की बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, तुमने कहा रे यार हमारे समाज की बेटी थोड़ी है, अगर ये सोच करके तुम आगे बढ़ गए तो तुम्हें फिर मुसलमान कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। बेटी गरीब की हो, बेटी किसी मजहब की हो, बेटी हाजी नमाजी गाजी की हो, बेटी किसी दलित की हो, पसमानदा की हो, पिछड़े की हो, अति पिछड़े की हो, अगर उस बेटी के साथ जुल्म हो रहा है, अगर उस बेटी के साथ इंसाफी हो रही है और अगर तुम राह से मुस्कुराते हुए चले जाते हो, याद रखना फिर तुम्हें मुसलमान कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। याद करो अपने पैगंबर की तारीख, अगर तुम्हारे पैगंबर ने और तुम्हारे मजहब ने अगर गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म और ज्यादती की तारीख बताई होती तो मेरे पैगंबर कभी उस बुढ़िया के घर न जाते जो रोज हुजूर पे कूड़ा फेंका करती थी, मगर कूड़ा नहीं फेंका तो पलट के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए कि बूढ़ी माँ क्या बात है, आज आपने कूड़ा नहीं फेंका? तो कहा मैं अलीम हूँ, बीमार हूँ, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा। ये मुसलमान जो हर वक्त मस्जिद में होगा तो दुआ करेगा फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, फंसुरना अलल कौमिल मुश्रिकीन, सारी दुआएं करेगा, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलता है ये तो इसके कौल और इसके फेल में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कुरान पढ़ा है, तमाम मिंबरों से रोजाना तकरीरें हो रही हैं, इज्तिमा, मीलाद, जलसा, अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर ईमानदारी से मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आप इस्तिंजा खाने में बैठोगे कैसे? वॉशरूम में जाओगे कैसे? चेहरा किधर होगा आपका? ये आप किससे सीखोगे? किसी दुनियादार से नहीं, आप सीखोगे पैगंबर इस्लाम से। आप खाना खाओगे तो दुआ कौन सी पढ़ोगे? ये सीखोगे पैगंबर इस्लाम से। कपड़ा बैठ के पहनना है या खड़े होके, ये सीखोगे अपने पैगंबर से। जूता पहनोगे पहले कौन सा पैर डालना है और उतारोगे तो पहले कौन सा निकालना है, ये सीखोगे अपने पैगंबर से। मस्जिद में दाखिल होगे तो कौन सी दुआ पढ़ोगे, पहले कौन सा कदम रखोगे, ये सीखोगे अपने पैगंबर से। निकाह कैसे करना है, ये भी सीखोगे अपने पैगंबर से। रमजान का रोजा कैसे रखना है, ये भी सीखोगे अपने पैगंबर से। किस वक्त में कितनी नमाज है और कैसे कैसे रुकू सजदा करना है, ये सीखोगे अपने पैगंबर से। यहाँ तक कि अगर जनाजे को, अगर लाश को, मैयत को नहलाना भी है तो कैसे किस करवट में जाकर के कब पानी डालना है, ये भी सीखोगे अपने पैगंबर से। कितने कपड़े मर्द को, कितने औरत को देने हैं, ये भी सीखोगे अपने पैगंबर से। कब्र में उतारोगे कैसे, चेहरा किधर होगा, ये भी सीखोगे अपने पैगंबर से। यानी जिंदगी से लेके मौत तक सारी चीजें सीखोगे अपने पैगंबर से। तो जिंदगी इज्जत के साथ जिया कैसे जाए, ये मायावती से सीखोगे आप, ये आप अखिलेश यादव से सीखोगे, ये आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सीखोगे। क्यों? कुरान तो कह रहा है जिंदगी के तमाम शोबों में जो मेरा महबूब का नक्श कदम है उस पर चलोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, उससे हटोगे तो तुम तबाह हो जाओगे। तो फिर मुझे ईमानदारी से यहाँ जितने इंसाफ पसंद लोग बैठे हैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जब सारा काम सीखोगे अपने पैगंबर से, कुरान ने जमानत दे दी है कि मेरे महबूब के तरीके कार पे चलोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। तो फिर मुझे बताया जाए कि पैगंबर इस्लाम हालत सजदा में होते थे, ऊंट की ओझड़ियां पुष्ट अनवर पर डाली जा रही थी, सामने काबा में आपके गर्दन में चादर डाल के खींचा जा रहा था। आप अंदाजा कीजिए, जनाब उमर को जख्मी किया जा रहा था, जनाब अबू बकर शहर छोड़ देने के लिए तैयार है, बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर तोड़े जा रहे थे। ईमानदारी से बताइएगा, किसी सहाबी को तख्ते दार पे, किसी को दारो रसन और
اور کسی کو مار مار کے سزائیں دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 3 سال تک شیب ابی طالب ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جا رہا تھا۔ سوچئے ہر شخص یہ کہتا ہے ہم پریشان کیوں ہے، مارا کیوں جا رہا ہے، ستایا کیوں جا رہا ہے، آخر مولانا صاحب اس کا سبب کیا ہے؟ سبب تو مولانا صاحب بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اخلاق بہت خراب ہو گیا ہے۔ یار اگر ہمارا اخلاق چلیے مان لیا جائے کہ بہت خراب ہے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں پتھر برسائے جا رہے تھے؟ کیا اخلاق مصطفیٰ خراب تھا؟ 100 بار معاذ اللہ رب العالمین نہیں۔ جناب ابو بکر کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا، کیا جناب ابو بکر کا کردار کسی سے خراب تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ جناب عمر کا کردار کسی سے خراب تھا؟ جن صحابہ نے ہجرتیں کی، کیا ان کا اخلاق اور کردار یا ان کا ایمان کمزور تھا؟ نہیں صاحب، ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کے کردار کا نہ کوئی جواب تھا، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ پھر مجھے بتایا جائے، آپ کہتے ہو کہ ستائے اس لیے جا رہے ہو کیونکہ صاحب کردار خراب ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ یقین سے مجھے بتائیے گا کہ کہاں آپ کا ایمان کمزور ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آج بھی آپ کے سامنے رمضان کے مہینے میں دسترخوان سجا ہوتا ہے، اگر آپ چاہو تو کچھ اٹھا کے کھا سکتے ہو، مگر یہ ایمان بھی تو ہے کہ نہ ابھی جب تک اذان نہیں ہوگی ہم کچھ کھا نہیں سکتے ہیں۔ یار یہ ایمان بھی تو ہے۔ اور کسے ایمان کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی زبردستی آپ سے کہے مذہب اسلام کے خلاف بولنے کے لیے، اور اگر کہے اتنا مضبوط ہے کہ مر جائیں گے مگر ہم بول نہیں سکتے صاحب، یہی تو ایمان ہے۔ یار ایمانداری سے بتاؤ کون کہہ رہا ہے ایمان کمزور ہے؟ نہیں۔ جب حضور کو شہر چھوڑنا پڑا، یہی پیغمبر اسلام مکے میں شراب کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جتنے ٹھیکی ٹھیکا والے تھے سب روز سوچ رہے تھے پیغمبر اسلام کو یہاں سے ہٹایا کیسے جائے، جملے کے خلاف ابھیان چلایا، کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ وحدانیت کا اعلان کیا تو سر کا خون آپ کے نالین میں آیا ہے، جوتے میں آیا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ کیا ایمان کا معاملہ تھا، کردار کا معاملہ تھا، اخلاق کا معاملہ تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر کون سا طریقہ ہے اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کے لیے؟ یقین سے بتائیے کیا ہر شخص اس لیے پریشان نہیں ہے؟ ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچے میں تمہاری بیٹیاں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کوئی کہتا ہے میٹنگ بلا لو، کوئی کہتا ہے سر جوڑ کے بیٹھو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر میں کہتا ہوں تمام مظالم جو شہر مکہ میں پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب پہ اٹھائے جا رہے تھے، ایسے عالم میں جب پتھر برس رہے ہوں، جب ساتھیوں کو سولیوں پہ چڑھایا جا رہا ہو، جب زمین پر زندہ بیٹیوں کو قتل کر کے انہیں زمین میں دردور کر دیا جا رہا ہو، جب اپنا شہر جائے پیدائش مکہ المکرمہ کو چھوڑ دینا پڑ رہا ہو، ایسے عالم میں پیغمبر اسلام کا کیا طریقہ کار رہا؟ تو سنیے، پیغمبر اسلام نے رات کی تاریکی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی، اور تاریخ بتاتی ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے مگر مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آپ چلے اور مدینہ المنورہ میں داخل ہو گئے۔ مدینہ المنورہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا، اس پوائنٹ کو ذرا اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، جو پہلا کام کیا ہے وہ انصار اور مہاجرین کو ایک ساتھ گلے سے گلے ملایا ہے۔ کسی سے کسی کی برادری نہیں پوچھی، کسی سے کسی کے دولت اور سمپتی کے بارے میں نہیں پوچھا، ایک انصار اور ایک مہاجر کو کھڑا کیا، اسے اپنے مواقعات کے نام سے جانا جاتا ہے، ملا دیا یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، فلاں اس کا بھائی ہے۔ سنو، اپنی طاقت کا شیرہ کا بکھیر دینے والے انصاری منصوری خان، سید فاروقی اور صدیقی پٹھان مرزا کے نام پر اپنے آپ کو تباہ کر دینے والوں، یار تمہاری تو شناخت یہ تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ ایمانداری سے مجھے بتائیے، پیغمبر اسلام نے مکے میں کہا تھا ٹھیکہ بند ہو، بند ہوا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ بیٹیوں کا قتل بند کیا جائے، بند ہوا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر کون سا کام کیا؟ مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے آئے پیغمبر اسلام، ایک گھوشنا پتر جاری کیا اور اعلان کیا کہ اہل مدینہ میری بات کو دھیان سے سنو، اگر آپ نے اس ہونے والے الیکشن میں مجھے طاقت دے دی، الیکشن میں سوچئے گا، یہاں بات کریں تو الگ الگ
सियासी जमातों में रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अपना नुकसान क़यादत पर नुकसान कराते हैं और कहेंगे साहब जज्बाती तकरीरों पे मत जाइए, इसलिए कि साहब अकलियत में है, माइनॉरिटी है, और वो जज्बात में लाकर के कहां पहुंचा देंगे। खुदा की कसम, अगर ईमान है तुम्हारा कुरान के एक एक हरफ ज़बर ज़ेर जज़म तशदीद पर, तो आओ, अगर तुम अकलियत में हो तभी तो अल्लाह का वादा है, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। एक दो बार नहीं, बारहा हमने कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब किया है, मगर किसे गालिब किया है? जो तरीके मुस्तफा पे अमल कर रहा होगा, सबके साथ मैदान में बैठा होगा। सोचिए 2012 में हमने 5 विधायक जिताए थे, 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जिताए थे। चुनाव हुआ, चुनाव में हारना जीतना लगा रहता है, मगर हम इसलिए मैदान में नहीं आए। डॉक्टर अयूब से पूछा गया था कि डॉक्टर साहब 8 में पार्टी बनाई, 12 में 5 विधायक आपने जिता दिए, मगर 17 में सारी सीटें आप हार गए, तो साहब अगर कहिए तो किसी पार्टी से मैनेज करा के आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए, आपको मंत्री बना दिया जाए। सलाम है जुर्रत और बेबाकी पर डॉक्टर अयूब के, कहा था उस बंदे मुजाहिद है, ओ लोगों तुम हमें मंत्री बनाने की बात करते हो। 2008 में मैंने अपने गरीब साथियों के साथ तय किया था कि मैदाने सियासत में कदम रखूंगा तो मंत्री बनने के लिए नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए कदम रखा है। याद रखना, हमें मंत्री बनना होता तो साइकिल हाथी खरीद के कब का बन गया होता, मगर नहीं, हम आए हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। और आप तैयारी देख लें, मऊ से मुरादाबाद तक, जो है गाजीपुर से गाजियाबाद तक, कोई एक ऐसा जिला बता दीजिए जहां 24 घंटे वर्क न हो रहा हो। और वो लोग जो मिंबरों से खड़े होकर आपको तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की अमीर तफसीर बताते थे, उसका असल मतलब डॉक्टर अयूब ने अपने उलमा के जरिए से मिंबरों तक पहुंचा दिया है कि याद रखना, पैगंबर इस्लाम मक्के की जमीन पे शराब के खिलाफ अभियान चला रहे थे, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। मगर यही पैगंबर इस्लाम ने सियासत मदीना को हाथ में लिया। जैसे ही लोगों ने अहले मदीना ने सुना, माओ ने सुना, बहनों ने सुना कि अरे इस बायलाज में तो लिखा है कि अगर मेरी सरकार बन गई तो किसी बेटी को कत्ल नहीं किया जाएगा। यही ऐलान पैगंबर इस्लाम का मक्के में था, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। मगर जब ये बायलाज आया, अहले मदीना ने पढ़ा, उनकी औरतों ने कहा कि बायलाज में लिखा है किसी बेटी को कत्ल नहीं किया जाएगा, लिखा है कि शराब की दुकानें, शराब के ठेके को, शराब का बनना, बिकना, पीना, पिलाना बैन कर दिया जाएगा। खुदा की कसम, कौन कहता है अकलियत गालिब नहीं आ सकती? हाँ, आप तरीके मुस्तफा पर आकर के तो देखो, इस बायलाज के बाद ट्वीट करके लोगों ने पैगंबर इस्लाम की हिमायत में अपनी वोटिंग कर दी और हुजूर ताजदारे मदीना हो गए। हुजूर ने मक्के में कहा, कोई सुनने को राजी न था, मगर जब मदीने की सत्ता को अपने हाथ में पैगंबर इस्लाम ने लिया तो एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, एक हुक्मनामा जारी हुआ। आज के बाद किसी बेटी को जमीन पर कत्ल नहीं किया जा सकता है, वरना सजा हुकूमत तय करेगी, जान का बदला जान होगा। आप अंदाजा कीजिए हुकूमत की जो ताकत है, जुल्म और तशद्दुद से बचने के लिए एक ही ताकत है। पूरे भारत के तमाम मसलक के उलमा मिलके आइए चलते हैं जंतर मंतर पर और सर पटक के कहते हैं कि हमारे जिले के तमाम शराब के ठेकों को बंद कर दिया जाए। क्या उलमा के इख्तियार से ये काम मुमकिन है? शराब पूरे जिले से नहीं, क्या शराब की एक ठेकी भी बंद हो सकती है? आपका जवाब होगा नहीं बंद हो सकती, क्योंकि मिंबरों से अच्छी बातें बताई जा सकती हैं और इख्तियार में आकर उन अच्छी बातों पे अमल कराया जा सकता है। एक फैसला, एक हुक्मनामा सत्ता बनने के बाद जारी हुआ कि आज के बाद इख्तियार आमिना के लाल के हाथों में है। आज के बाद जमीने मदीना पर शराब का बनना, बिकना, पीना, पिलाना बैन किया जाता है। तारीख में मौजूद है, कोई नाला, कोई नाली नहीं थी जिसमें लोगों ने कई कई साल पुरानी शराबें बहा न दी हो। कौन सी ताकत थी? ये सत्ता की ताकत थी, ये सत्ता की ताकत थी कि जिसने
जमीन मदीना पर इंसाफ का राज कायम करा दिया। और आज पूरी दुनिया में उस हुकूमत के नक्श कदम पर चलकर लोग अपनी हुकूमतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोई कहे बेटियां इर्तिदाद की तरफ, तो जवाब दीजिएगा और तैयारी कीजिएगा कि ना, बगैर क़यादत के इंसाफ मुमकिन नहीं है। मोमिन एक सुराख से सिर्फ एक बार डसा जा सकता है, दोबारा नहीं। और अगर दोबारा डसे जा रहे हैं तो अपने करीबान में झांक कर देखने की जरूरत है, हम मोमिन हैं भी या सिर्फ नाम ही अब्दुल सत्तार है, हाजी अब्दुल गफ्फार है, नाम ही सिर्फ सरदार है, नाम ही सिर्फ अरबाब है। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता। आपने तो सबकी सरकारों को देखा है, सबकी सत्ता को आपने देखा है, इंसाफ आपने सबसे चाहा है, मगर इंसाफ के बजाय जुल्म आपके हवाले किया गया है। यकीन के साथ कह सकता हूँ, एक मिजाज पैदा कीजिए, चाहे इर्तिदाद के रास्तों से, चाहे खानकाहों इबादत गाहों की हिफाजत के लिए, चाहे उलमा के वकार और उनके तहफ्फुज़ के लिए, चाहे नौजवानों के रोजगार के लिए, और चाहे इस जमीन पर अदल और इंसाफ का राज कायम कराने के लिए अलग अलग तंजीमें, सोसाइटी, जमात, अलग अलग टोली, अलग अलग शक्ल में लोग नीला पीला काला सब पहन के आएंगे और सब यही कहेंगे कि साहब हम कौम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हैं। मगर उनसे कहना कि आज तक किसी तंजीम ने किसी होने वाले जुल्म के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, और आवाज उठाई भी है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। आए हो अगर हमें दावत देने, तो आज हमारी सियासी दावत को कबूल कीजिए। आइए जमीन पर पार्टी बनाते हैं, झंडा लेते हैं, एक ईमानदार नेता लेते हैं, संगठन बनाते हैं और फिर अल्लाह की मदद का इंतजार करते हैं। ये कहो कि दुआ मांगने से काम हो जाए, नहीं हो सकता। इस जमीन पर अदल और इंसाफ का राज कायम करने के लिए एक सियासी झंडे की जरूरत है, जिसे पूरे मजबूती के साथ हम लोग लेकर के मैदान में हजारों उलमाए किराम और हजारों नहीं लाखों की तादाद में नौजवान निकल चुके हैं, जिन्हें बात समझ में आ गई है कि अब इख्तिदार के लिए और इख्तिदार में हिस्सेदारी के लिए हमें सिर्फ, इधर देखें भाई, इधर देखें, सिर्फ इख्तिदार में हिस्सेदारी का हमारे पास एक ही रास्ता है कि मजबूत सियासी जमात के साथ खड़े होकर के एक ईमानदार शख्स के हाथ पे हम अपने हाथ को रख करके ऐलान करें। डॉक्टर अयूब सज्जन को कब समझोगे आप? CAA का मामला हो, NRC का मामला हो, इबादत गाहों का मामला हो, आपके लखनऊ में दहशतगर्दी का मामला हो, आजम खान साहब का मामला हो, किसी का भी मामला रहा हो, एक मिनट के लिए भी आपने देखा होगा अपने कायद को, कभी पलट के उसने पीछे नहीं देखा, कदम आगे बढ़ाता रहा है और उलमाए किराम के वकार और तहफ्फुज़ के लिए तमाम जगहों पर आपका कायद मजबूती के साथ रहा। और यही वजह रही कि निज़ाम मुस्तफा के सिर्फ नारे की बुनियाद पर डॉक्टर अयूब सज्जन को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। मगर इसकी तफसील के लिए मैं अपने सियासी उस्ताद मोहतरम सैयद राशिद उमर मदनी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लेके आए, क्योंकि अजान ऐशा की अजान का वक्त भी हो जाएगा। बस एक आखिरी बात कि आप सियासी बेदारी पैदा कीजिए, अपनी क़यादत, सबकी हिफाजत, हर दरवाजे पर इंसाफ इंशाअल्लाह पहुंचाने के लिए पीस पार्टी लगातार काम कर रही है। न सिर्फ मुसलमानों को, तमाम समाज और तमाम धर्म के लोगों को लेकर के पीस पार्टी ऐलान करती है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू से मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते रहें कायम, अगर ये प्यार छूटेगा तो भारत टूट जाएगा। और इस भारत की एकता, अखंडता और शांति के लिए हमें सबको अपने कलेजे से लगा करके अखलाक मुस्तफा का मजहर बन करके इस जमीन पर सियासी बेदारी के साथ हमें अपने झंडे के नीचे अपनी क़यादत और अपने कायद की आवाज में आवाज मिला करके आने वाले इंतखाबात में अपने वोटों की गिनती करा करके, अपनी सभों में इत्तेहाद पैदा करके, अपने तमाम समाज के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ेंगे इस यकीन के साथ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी अगर ये बात तो फिर नुकसान
सबका है, और इस नुकसान को बचाने के लिए हम सभी इंसाफ पसंद हिंदू और मुसलमानों को आगे आना होगा। मैं पार्टी के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम साथियों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं, और आप सबके सामने मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव, अपने सियासी उस्ताद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, पीस पार्टी के सभी जिम्मेदार, डायरेक्टर, मेहमान और ऑर्गेनाइज करने वाले नौजवान और इस इलाके के अवाम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी तो हजरत मौलाना अब्बास फारूकी एक शानदार मुकर्रिर है, बड़ी मजबूती से अपनी बात को रखता है, बड़ी बेबाकी के साथ। पूरे मुल्क में एक पहचान, एक चेहरा है, लेकिन आपका बेटा है, इसलिए शायद बात नहीं सुन जाती। एक बात कह गया अरबाब यादव सियासी न होते, सियासत में न होते, तो क्या आप लोग उन्हें जानते पहचानते? मायावती सियासत में न होती, सियासतदान न होती, तो कोई पहचान होती? राहुल गांधी, सोनिया गांधी सियासत में न होते, तो कोई उन्हें जानता पहचानता? और आज हम ये कह रहे हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो मेरी पहचान होगी? मेरी पहचान होगी? अब इतनी भी अक्ल नहीं है मेरे पास। अलग ऐलान मुल्क का मुसलमान कह रहा है, हम मुसलमान नहीं, बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग इस बात को सीना ठोक के कहते हैं, बड़े फखरिया कहते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो गैर सियासी हूं। और मुलायम सिंह यादव सियासी न होते तो पहचान न होती, हम न जानते कौन है। मायावती सियासी न होती तो हम न जानते कौन है। और मैं खुद ही कह रहा हूं कि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं हो, मैं अपना वजूद ढूंढ रहा हूं जमीन के ऊपर। अजीब वक्त से पैदल है, पूरी मक्का और मदीना की जिंदगी बता दे हजरत मौलाना अब्बास साहब। कुरान कह रहा है, हम नहीं कहते। जब मुश्किल आ गई मक्का की सरजमीन पर, तो अल्लाह ने क्या कहा? क्या मेरे महबूब जा करके दुआ करो, ऐ मेरे महबूब पहाड़ी पर चढ़ जाओ, जा करके नमाज पढ़ो, रोजा रखो। क्या कहा? क्या कहा अल्लाह ने? जब पूरा मक्का जान का दुश्मन हो गया, मक्का की जमीन तंग हो गई, तो अल्लाह ने क्या कहा? वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इख्तियार पे कब्जा करो, हुकूमत पर कब्जा करो, सत्ता पर कब्जा करो। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अखिलेश यादव से कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करो। अजीब बात, अजीब बात। मायावती मुख्यमंत्री बने, सत्ता कब्जा वो करेंगे। अल्लाह कह रहा है कि वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, इख्तियार पे कब्जा करो। इसे कह रहा है। किसको कहा? कुरान कौन पढ़ता है, कुरान कौन सुनता है, कुरान कौन समझता है, कुरान पर कौन ईमान रखता है? अखिलेश यादव कुरान पर ईमान रखता है, मायावती कुरान पर ईमान रखती है। ये अल्लाह वाले हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान को समझते नहीं। कुरान ने क्या कह दिया? मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया, वोट का कोई माहौल नहीं है, इलेक्शन नहीं है, लेकिन पीस पार्टी लगातार ये काम कर रही है। इसे इसका एहसास हमें होना चाहिए कि हर दरवाजे ये मिशन पहुंचाया जा रहा है कि अल्लाह ने क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किसको कहा? मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव ईमान रखता है। मायावती को कहा,
مایوسی مان رکھتی ہے. کسی کہا یہ خیر امت, کیا کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, برپا کیا, نکالا ہے. کس کام کے لیے؟ خیر کے لیے, بھلائی کے لیے, ویلفیئر کے لیے, کلیان کے لیے. کس کی بھلائی؟ للناس, انسانوں کی, لوگوں کی, پوری مانوتا کی, پوری انسانیت کی بھلائی کا تاج میرے سر پر اللہ نے رکھا ہے. پیدا کیا اللہ نے اور یہ تاج سر پر پہنا کر کے بھیجا ہے. یہ سیاسی بات ہو رہی ہے. ہم نے 100 سال سے جو ناٹک کیا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں, اس لیے سیاست کا راستہ ہم بھول گئے, سیاست کا سبق بھول گئے. سیاسی نظریے سے قرآن کو دیکھنا ہم نے چھوڑ دیا. قرآن میں نہیں تلاش کیا. اللہ نے پوری قرآن نازل کیا, پھر ایک لائن لکھا, قرآن میں نازل ہوا. کیا کہا اللہ نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا کہا کہ تیرا میرا رسول تیرا نمونہ ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, آدرش, رول ماڈل ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو گے نبی کے طریقے, رول ماڈل نبی کا ہوگا. نماز پڑھو گے نبی کے طریقے, وہ رول ماڈل نبی کا ہوگا. سارا کام نبی کے طریقے, وہ رول ماڈل نبی کا. اور جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, وہاں رول ماڈل نبی کا نہیں ہوگا. انسانوں کی بھلائی کے لیے نبی کا ماڈل نہیں ہوگا, نبی کا طریقہ نہیں ہوگا. وہاں لیٹ گیروں کا طریقہ ہوگا, مایوتی کا طریقہ ہوگا, سونیا گاندھی کا طریقہ ہوگا. اور تباہی مقدر ہے ہماری کہ جس میدان میں ہم نے طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہے, جس میدان میں دامن مصطفیٰ چھوڑا ہے, خدا کی قسم پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ہمیں کوئی تباہی سے نہیں بچا سکتا. یہی اللہ کا وعدہ, اللہ کا اعلان. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس راستے پر چلا دے جس پر کہ تیرا انعام ہے. وہ راستہ کون سا ہوگا؟ اب دیکھ چلو گا, اب دیکھ چلو گا مایوتی کا, یوگی آدتیہ ناتھ کا. یہ ہمارے لیے پوری انسانیت کی بات ہے. تو ضرورت سب کہہ دیا تھا ابا فاروقی نے کہ کم تعداد کو اللہ نے بڑی تعداد کو غالب کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے. اس کی پرواہ نہ کرنا. ہمارے بیچ لوگ آتے ہیں اصل میں ٹھیک ہے, آپ کی بات ساری بہت اچھی ہے, لیکن ہماری تعداد کو ہم کیسے غالب آئے تھے؟ خدا کی قسم سینہ ٹھوک کر کے رب کائنات کے جاہو جلال کی قسم کھا کر کے کہہ دو کہ میں جس نبی کا ماننے والا ہوں اس نبی نے کبھی پیچھے مڑ کر کے تعداد نہیں دیکھی ہے. ہٹو پیچھے ہٹو, ہمیں جانے دو, راستہ ہمارا آگے ہے. ہم تعداد کی پرواہ نہیں کرتے. میرے نبی نے تعداد کی پرواہ نہیں کیا ہے, صدیق اکبر نے تعداد کی پرواہ نہیں کیا ہے, فاروق اعظم نے تعداد کی پرواہ نہیں کیا ہے. کون آیا ہے اپنی تعداد کی کھانے کے لیے؟ بتا دو نا, زمانہ آفات میں آ جائے گا. کیا یہ ڈر ہمیں نہیں لگتی؟ لوگ کہیں آپ بول دیتے ہو ہم لوگ کو بڑا خطرہ ہے, وہ گاؤں کا پردھان ہمیں مارے گا. یار آپ کو کیوں مارے گا؟ آپ کو کھیل ہم رہے, ڈرنا ہم کو چاہیے نا, ڈرنا ہمیں چاہیے, ہمیں ڈرنا چاہیے. لوگ ڈراتے بھی ہیں لیکن کیا مسلمان اب اتنا ہو گیا ہے کہ ہم کسی سے بھی ڈر جائیں؟ ڈر جائیں ہم؟ ڈرنے والی قوم ہے. بات آتی ہے نہیں ہم نہیں ڈریں گے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں تک کھڑے ہو گئے جب ہم کسی سے بھی ڈرنے والے ہوں. نکلو گھروں سے, اللہ کا نام لے کر کے نکلو. یہ ملک کی تاریخ گواہ ہے. علامہ اللہ فاروقی نے کہا کہ اورنگزیب نے بیٹی شکنتلا کے لیے انصاف کیا تھا, ابراہیم سدوال کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. ایک بیٹی شکنتلا کا انصاف پورے بھارت کے وہ ہمارے ہم وطن عزیز بھائی
جو دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں، جن کا دھرم ہندو دھرم ہے، ہندو دھرم کے سب سے بڑے بھگوان شنکر بھگوان کل جب چائنا کے قبضے میں مان سروور قبضے میں تھا چین کے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بن کر کے ہم نے اس پر چڑھائی کیا تھا، مان سروور کو فتح کیا تھا اور اپنے ہم وطن عزیز بھائیوں کو شنکر جنم استھلی آزاد کرا کر کے درشن کرنے کے لیے دیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ یہ آپ کی سرکار کرے گی؟ چائنا گھس کر کے بھارت کے اندر گاؤں بسا رہا ہے، چائنا گھس کر کے بھارت کے اندر گاؤں بسا رہا ہے، اور ہم اقتدار میں تھے، ہم چڑھ کر کے شنکر بھگوان کو آزاد کرا رہے ہیں۔ وہی جذبہ ہے، وہی خون ہے، وہی سب کچھ ہے آپ کے اندر آج، لیکن اس بےمانوں نے ہمیں یہ کہہ کے کمزور کر دیا کہ میرا سیاست سے تعلق ہے۔ ایک جملے نے تباہ کیا ہے، ایک جملے نے تباہ کیا ہے۔ پورے ملک کے اندر برہمن بھائیوں کی تعداد 2.5 سے 3% ہے، اور آزادی سے لے کے آج تک کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ انہیں کا، اور ہم کو سکھاتے ہیں آتے ہیں کہ ارے آپ کی تعداد کم ہے۔ کئی لوگوں کی تعداد اکٹھا ہوگی تب میری تعداد کے برابر آئیں گے۔